Good morning to all kids. In our previous video, we discussed about the monuments and the strong architectures which are built by our ancestors and which are a part of our heritage now. Not only the Great Red Fort, the Qutub Minar, the Taj Mahal, or the other things which are built by the kings or the rulers are very strong and a part of the heritage. There are so many palaces. The Havelis, which were called in the ancient time, are also a great marvel of the local craftsmanship and the skill. कि उस समय के लोगों का जो स्किल था, जो आर्किटेक्चरल नॉलेज थी उन लोगों की कितनी अच्छी थी. द एग्जाम्पल्स आर लाइक द मांडू फोर्ट एंड द ग्वालियर फोर्ट. द in the Madhya Pradesh they are, and the Shivneri fort that is in Maharashtra. ये जो फोर्ट्स हैं ये अपने ग्रेट आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं. मांडू फोर्ट के अंदर, मांडू फोर्ट इज़ वन थिंग, वन प्लेस दैट इज़, और उसके अंदर बहुत सारे पैलेसेस हैं. मांडू फोर्ट उसे कलेक्टिवली बोला जाता है. उस एक फोर्ट के अंदर सो मेनी नंबर ऑफ पैलेसेस आर देयर लाइक द जहाज महल, द हिंडोला महल, ornamental canals, baths, mosque, and other buildings. Means these things are enclosed inside the Mandu fort, and it's a wonderful piece of Afghan architecture. Afghani style में इसे बनाया गया है, and सब marble. It's a an example of great architecture in Afghan style. Then the great Gwalior fort, which was built by Raja Man Singh Tomar of the Tomar dynasty in the 15th century. Okay, and it has the reputation of being one of the strongest forts of India. ये fort one of the strongest fort in India में माना जाता है, and it stands on an isolated rock and contains a number of historical buildings. ये भी एक fort है और केवल एक रॉक, एक सिंपल रॉक के ऊपर ये स्टैंड है. रॉक में कोई छोटा सा चट्टान या पत्थर नहीं, एक बड़ा सा टीला, और उसके ऊपर ये फोर्ट पूरा बना हुआ है. एंड इनसाइड दिस ऑल्सो सो मेनी बिल्डिंग्स आर देयर लाइक द मॉस्क, द गुरुद्वारा. ऑल दीज थिंग्स आर इनसाइड द फोर्ट. और गुरुद्वारा जो है इस फोर्ट का, ग्वालियर फोर्ट का, वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है. लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं और इसे देख करके और इससे अमेज़ करते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ द शिवनेरी फोर्ट. शिवनेरी फोर्ट वॉज बिल्ट बाई शिवाजी. ओके, सो दैट इज़ इन महाराष्ट्र. और ये शिवाजी का बर्थ प्लेस भी है. हु वॉज बॉर्न इन 1627, जो मराठा किंगडम के बहुत बड़े राजा हुए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड ही नेवर सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द मुगल्स. ही फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस. सो दिस फोर्ट हैज़ 7 ह्यूज गेट्स. इस फोर्ट में बहुत बड़े बड़े विशाल 7 गेट्स हैं, और इन सातों को क्रॉस करना होता है तब आप जा कर के मेन फोर्ट में पहुंचते हैं. सो इट्स सच अ great one, such a big one, and a marvel of architecture as an example of great architecture and skill of that time. Right in the middle of this fort there is a pond known as the Badami Talab. ठीक है, पूरे फोर्ट के बीचों बीच एक पॉन्ड है जिसका नाम है बादामी तालाब. नियर द पॉन्ड इज अ स्टैचू ऑफ जीजाबाई. यू ऑल नो दैट जीजाबाई, द ग्रेट लेडी, वॉज मदर ऑफ शिवाजी. एंड this temple, the temple beside inside this palace is situated near the Shivneri fort. That temple is dedicated to the goddess Shivani. Okay, now the next one, not only the forts, there are so many temples also in India which are a great example of architecture and craftsmanship, like the Meenakshi temple. You can see this temple is a great one and a very good example of the architecture. It shows the architecture of ancient India, and this temple showcases the country's rich culture. कितना rich culture और कितना स्ट्रॉन्ग, कितने अच्छे काम करने वाले लोग उस वक्त थे, कितनी बारीकी से सारा काम किया जाता था. स्टिल इन दिस period of time, in the modern, with the help of modern techniques, we are not able to build another Meenakshi temple. वो कभी नहीं बन पाएगा. It's only the skill of the craftsmen, those who worked in the ancient time. And these temples, some of which, कुछ ऐसे भी temples हैं like the Sun Temple that is in Konark, they dates back to more than 1700 years. Okay, और इनके अंदर की जो carvings हैं, जो sculptures हैं, like that is in Meenakshi Temple in Madurai, they
are the best example of Dravidian architecture. Dravidian style of architecture, Nagada style of architecture, Vizara style of architecture. All these things you will come to learn about in our coming classes. जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप इन सारे स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर को समझ सकेंगे, उनके बारे में और भी डिटेल पढ़ सकेंगे. सो दिस मीनाक्षी टेम्पल is a great example of Dravidian architecture, and this temple is dedicated to Lord Shiva and goddess Parvati. शिव और पार्वती को डेडिकेटेड है ये टेम्पल. एंड सो मैनी विजिटर्स आर देयर जो रेगुलरली वहाँ जाते हैं एज अ टूरिस्ट वन, एंड दे ऑल्सो पे देयर होमेज टू द ग्रेट वंस. Then if we talk about the Sun Temple, it's also a marvel of the great architecture and an example of the rich culture of India. In the Sun Temple, that is in the chariot form of the sun god, sun को dedicated है ये temple, और एक chariot रथ के रूप में ये पूरा बना हुआ है जिसके चारों तरफ व्हील्स बनाए गए हैं. दैट शोज द जर्नी एंड द सेट्स एंड द राइजिंग ऑफ द सन. ओके, एंड दैट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड इट्स डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स. इस पूरे टेम्पल को स्टोन्स को कार्व करके डिज़ाइन किया गया है, और पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो सन टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ह्यूज चैरियट ड्रॉन बाय 7 स्पिरिटेड हॉर्सेज. 7 हॉर्स ये माना जाता है कि सूर्य के रथ को खींचते हैं, तो ये उन्हीं को डेडिकेट करता हुआ और बनाया गया है. ओके, देन द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स. देयर आर सो मेनी. वी नो दैट इंडिया हैज़ अ ग्रेट कल्चर, रिलीजन. हमारे यहाँ सभी धर्मों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है. नो वन इज़ पेड एनी काइंड ऑफ लेस अटेंशन. हर धर्म अपने आप में महान है, और सभी धर्म गॉड को प्रे करने के ही डिफरेंट वेज बताते हैं. सो बुद्धिज़्म ऑल्सो फ्लरिश्ड इन द मिडिएवल टाइम ऑफ हिस्ट्री. सो मेनी मॉन्यूमेंट्स आर देयर विच आर डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट ऑल्सो. सांची स्तूपा और सारनाथ में भी, विच आर बिल्ट बाय द एम्परर अशोका, आर अ ग्रेट मार्बल ऑफ आर्किटेक्चर. सांची हैज़ 4 गेटवेज, और ये जो गेटवेज हैं, यू कैन सी इन योर पिक्चर्स, जो गेट नज़र आ रहा है सांची स्तूपा का, दैट इज़ कॉल्ड द तोरन्स. ओके, और इन सब पे कार्विंग्स हैं बुद्ध के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के, और उनकी टीचिंग्स, जो उन्होंने शिक्षा दी, जो उन्होंने पढ़ाया, जो सिखलाया, वो सब कुछ कार्व्ड है इन तोरन्स पे और इनके पूरे वॉल पे. This shows through the symbols such as the lotus representing his birth, the banyan tree showing his enlightenment, and the wheel showing his teachings, and the footprint or throne highlighting his presence. Okay, जो लोटस है वो बताता है उनका बर्थ, हाउ द गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न. देन द बैनियन ट्री दिखलाता है उनका एनलाइटमेंट का फेज. देन द व्हील, जो व्हील है जो बना हुआ है उन थोरन्स पे, वो बताता है उनकी टीचिंग्स. और जो फुटप्रिंट है या थ्रोन है, दैट highlights his presence. Okay, so these are the symbols which are depicted on the different torans and the walls, and that shows the full journey or the phases of Buddhism and Gautam Buddha. Then the paintings are also a part of our rich heritage and culture. जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पेंटिंग के, वो 2 तरह से मेनली उन्हें डिवाइड किया गया है. दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, वॉल पेंटिंग्स एंड द मिनिएचर पेंटिंग्स. वॉल पेंटिंग्स जो वॉल पे किए जाते थे केव्स में, अजंता एलोरा केव्स उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, और ऐसे 29 केव्स हैं वहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल्स में और वॉल पे पेंटिंग किया गया है बाय आर एंशियंट पीपल. ओके, द वॉल्स ऑफ द केव्स आर फुल ऑफ कलरफुल पेंटिंग्स डिपेक्टिंग द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध की लाइफ और उनके टीचिंग्स को बहुत ही कलरफुली, बहुत ही अच्छे से पेंट करके उन वॉल्स पे बताया गया है. एंड देन द मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर मीन्स इन अ लिटिल बिट स्मॉल साइज, थोड़े से छोटे साइज में ही हर चीज़ को छोटा करके दिखलाना इन अ मिनिएचर वे. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर द राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स विच आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल पेंटिंग्स. मुगल पेंटिंग से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड दिखते हैं, एंड वी कैन गेट टू नो अ लॉट अबाउट द लाइफ्स ऑफ पीपल ऑफ दोज पीरियड्स फ्रॉम दीज पेंटिंग्स. ऑब्वियसली जो पेंटिंग बनते हैं उस वक्त के लोगों ने बनाए, तो जो उस वक्त वहाँ के समाज में हो रहा था, वहाँ के लोगों के साथ हो रहा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी थी, वो उनके फूड हैबिट्स, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, ये सब कुछ दिखलाता है.
So if we study the paintings and of either it is the wall painting or the miniature paintings, जब उन्हें डिटेल में पढ़ा जाएगा, then obviously they teach us about so many things which are related with the people of that time or the society of that time. So we can get so many knowledges and the things which were prevalent in that society. Then another thing is the artifacts, जो आर्ट उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, विच आर स्टिल एग्जिस्टिंग, जो अभी भी हैं और इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं दैट वी कैन विटनेस देम इवन टुडे. द टेराकोटा आर्ट वर्क, दैट इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफैक्ट्स ऑफ एंशियंट टाइम, and it's one of the earliest forms of art. Terracotta figures remind us of the Harappan reigns. जो हड़प्पन रेंस से, जो हड़प्पा से जो भी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो आप लोग पढ़े हैं और भी डिटेल में आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, वहाँ से जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, वहाँ से जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है, जो भी टूटे हुए अवशेष मिले हैं, जो बचे हुए हिस्से हमें मिले हैं, वो अगर आप देखेंगे तो उसे आप रिलेट कर सकेंगे टेराकोटा वर्क से. मिट्टी से बनाए जाते थे और फिर उन्हें बेक करके, उन्हें पका करके, फिर उसके बाद उन्हें पॉलिश किया जाता था. सो दैट इज़ कॉल्ड द टेराकोटा वर्क. डिफरेंट कलर्स उस पर यूज़ किए जाते थे. स्टैचूज़, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती थी. सो वी इंडिया हैव अ ग्रेट रिच हेरिटेज. वी जस्ट नीड टू क्रिएट अवेयरनेस and more awareness about how to preserve them. सो मैनी प्लेसेस आर देयर. अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेसेस हो सकते हैं, जहाँ बहुत सारे एंशंट रिमेन्स बचे हुए हैं जो हमारे हेरिटेज का हिस्सा है. मॉन्यूमेंट्स हैं, हवेलीज़ हैं, पैलेसेस हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, लेकिन उन्हें डेवलप नहीं किया गया है. सो इन्हें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इन्हें बचा के रखने की ज़रूरत है, ताकि अभी और भी आने वाले समय में, आगे आने वाले भी सैकड़ों हज़ारों साल तक हमारे बाद जो जनरेशन्स आ रहे हैं वो भी उन्हें देख सकें. सो इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड. ओके, सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर ऑफ हेरिटेज. यू ऑल गो थ्रू इट. बहुत डिटेल में आप इसे पढ़िएगा एंड underline the words which you are not understanding. We will clear that in the doubt clearing classes. I will be there. So अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में, you need to ask, then you please read the chapter and ask the questions in the classes. Okay, thank you.